وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کا مربی اور پالنہار ہے. بعد درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و اصحاب پر. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہم پر نچھاور ہیں. ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا. ان مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق یعنی انسان بنا کر کے ہمیں پیدا کیا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ چاہتا تو دیگر جو مخلوقات، جو حیوانات، جو نباتات ہے، اللہ چاہتا ہمیں وہ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ کا اتنا شکر ادا کرے گا میں کہ سب سے افضل مخلوق، سب سے بہتر مخلوق یعنی انسان بنا کر کے ہمیں پیدا کیا. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر بہت ساری ایسی صفات رکھی ہے، انسانوں کو بہت سی ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جو صفات اور جو خصوصیات دیگر مخلوقات کے اندر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی، یا آپ کہہ سکتے ہیں وہ صفات اور وہ خوبیاں، وہ خصوصیات دیگر مخلوقات کے اندر نہیں پائی جاتی. اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر جو صفات رکھی ہے، جو خصوصیات سے اللہ نے نوازا ہے، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر شرم و حیا کا مادہ رکھا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اس روئے زمین پر انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جو اپنا جسم چھپانے کے لیے کپڑوں کا استعمال کرتا ہے. انسان کے علاوہ کیا کوئی اور ایسی مخلوق ہے جو اپنا جسم کپڑوں کے ذریعے چھپاتے ہوں؟ نہیں ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر وہ شعور دے دیا ہے، وہ سمجھ دے دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو برہنہ نہیں رکھ سکتا، بلکہ انسان اپنے جسم کو چھپانے کے لیے یہ کپڑوں کا استعمال کرتا ہے. اور محترم سامعین، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ سمجھ کسی سماج اور معاشرے نے انسان کو دے دی ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ بغیر کپڑوں کے اپنے آپ کو برہنہ رہ کر کے وہ زندگی نہیں گزار سکتا. ہم نے بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جنگلی جو لوگ ہوتے ہیں، ہوتے انسان ہیں، وہ کھاتے کیا ہے کہ جنگل کے اندر جو جانور وغیرہ انہیں میسر ہوتے ہیں انہیں وہ کھا لیتے ہیں. ان کا انسانوں سے، ہم لوگوں سے کوئی ربط ضبط، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم ویڈیوز کے اندر دیکھتے ہیں اس کے باوجود بھی، یعنی انسانوں سے ہم لوگوں سے کوئی ربط ضبط نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا کر کے رکھتے ہیں. جنگلوں کے پتوں کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے مرد جو ہوتا ہے اپنی نچلی شرمگاہ کو چھپا کر کے رکھتا ہے، عورت اپنے سینے کو اور اپنی نچلی شرمگاہوں کو چھپا کر رکھتی ہے. تو محترم سامعین، انسانوں کو یہ سمجھ کسی معاشرے کی وجہ سے آئی ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ شعور، یہ سمجھ انسانوں کے اندر فطری طور پر داخل کر دی ہے کہ انسان برہنہ رہ کر کے زندگی نہیں گزار سکتا. آپ دیکھیے آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر تھے، شیطان نے انہیں بہکایا اور جس درخت کے قریب جانے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا، شیطان نے بہکایا اور وہ اس درخت کا پھل ان دونوں نے کھا لیا. سزا کے طور پر اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو برہنہ کر دیا، یعنی جسم پر جو کپڑے، جو لباس تھے، دونوں کے جسم برہنہ اللہ رب العالمین نے کر دیے. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. جیسے ہی ان دونوں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے بطور سزا ہمیں برہنہ کر دیا ہے، تو کیا کیا؟ جنتوں کے
پتوں کو لے کر کے انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کی کوشش کی. تو محترم سامعین آپ دیکھیے آدم علیہ السلام ان کی بیوی ہے اور اس روئے زمین پر کوئی اور شخص موجود نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے برہنہ رہ کر کے وہ زندگی گزارے. ایسا تصور اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دیا ہی نہیں ہے. جیسے ہی وہ برہنہ ہوئے جنتوں کے پتوں کو لے کر کے انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کی کوشش کی. تو یہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی فطرت میں رکھ دیا ہے, اور یہ فطرت, یہ شعور, یہ سمجھ ہم دیکھیں دیگر مخلوقات کے اندر نہیں پائی جاتی. اچھا محترم سامعین, اس سے انسان کا شرف بلند ہوتا ہے, انسان کا مقام بلند ہوتا ہے, کیونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ دیگر مخلوقات کے اندر یہ شعور, یہ سمجھ نہیں ہے. تو اس کے ذریعے انسان کا شرف بلند ہوتا ہے, انسان کا مقام بڑھتا ہے. اب بتاؤ کہ وہ کون ہے جسے انسان کے اس بڑھتے ہوئے شرف سے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ انسان کا یہ مقام دیکھ نہیں سکتا. ظاہر سی بات ہے وہ شیطان ہے, اسے یہ گوارا نہیں ہے کہ انسان کا شرف یہ دیگر مخلوقات سے بڑھ جائے. اسی لیے وہ کوشش کرتا ہے. شیطان کی جو بہت ساری کوششیں ہیں اس میں سے ایک اہم کوشش یہ ہے کہ وہ انسان کو اس شرف سے, اس مقام سے گرا کر کے وہ جانوروں کی صف میں شامل کرنا چاہتا ہے. اور شیطان کیا کوشش کرتا ہے کہ انسان کے اندر سے شرم و حیا کا مادہ ختم کر دیا جائے, انسان کو برہنہ اور ننگا کر دیا جائے, جس طرح جانور برہنہ ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں. اور شیطان یہ اپنی کوشش میں لگا ہوا بھی ہے. اور محترم سامعین, شیطان نے ہر دور میں یہ کوشش کی ہے کہ انسان سے شرم و حیا کا مادہ ختم کر دیا جائے, اسے برہنہ کر دیا جائے. اور جتنا کامیاب وہ ہمارے اس دور کے اندر ہے, اس سے پہلے کبھی اتنا کامیاب نہیں ہوا. شیطان جتنا کامیاب اپنی اس کوشش میں اس دور کے اندر ہے, اتنا کامیاب اس سے پہلے وہ کبھی نہیں ہوا. کیونکہ ہر دور کے اندر بے حیائی کو, بے شرمی کو غلط سمجھا گیا, لیکن آج ہمارے دور کے اندر بے حیائی کو غلط نہیں سمجھا جا رہا ہے. جو جتنی زیادہ بے حیا ہے اسے اتنا ہی زیادہ ماڈرن تصور کیا جا رہا ہے. وگرنہ ہم دیکھیں کہ اس سے پہلے کے دور میں چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو, بے حیائی کو غلط سمجھا جاتا تھا, بے شرمی کو, برہنے پن کو انسان اچھا تصور نہیں کرتا تھا. لیکن آج ہم دیکھیں آج کے اس دور میں جو جتنا زیادہ بے حیا ہے اسے اتنا ہی بڑا مقام دیا جا رہا ہے. محترم سامعین, شیطان جتنا کامیاب آج کے اس دور میں ہے بے شرمی پھیلانے کے سلسلے میں, بے حیائی کو عام کرنے کے سلسلے میں, اتنا کامیاب وہ اس سے پہلے کبھی بھی ہمیں نظر نہیں آیا. اور محترم سامعین, شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کی جو کوشش ہوتی ہے وہ گناہوں کو, وہ غلط کاموں کو, وہ ایسے نامنی اچھے ناموں کے ذریعے انسانوں کے سامنے وہ پیش کرتا ہے, اور انسان اسے گناہ تصور نہیں کرتا. مثلا آپ دیکھیں جب شیطان کو آدم علیہ السلام کو بہکانا تھا تو کیا کہہ کر کے بہکایا؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ شیطان نے جس درخت کی طرف رہنمائی کرنی تھی آدم علیہ السلام کو وسوسہ دلایا, بہکایا کہ میں تمہاری ایسی درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں. یعنی شیطان نے جو نام پیش کیا علی شجرۃ الخلد, شجرۃ الخلد یعنی ہم جسے کھا کر کے تم ہمیشہ ہمیں زندہ رہو گے, وملک لا یبلی, اور اگر اس درخت کو تم نے کھا لیا تو ایسی بادشاہ تمہیں ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. هل ادلک علی شجرۃ الخلد, کیا میں تمہاری رہنمائی نہیں کروں؟ شجرۃ الخلد یعنی محترم سامعین کتنا بہترین نام کے ذریعے وہ اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا. اور یہ شیطان کی کوشش رہی ہے. ہم دیکھیں کہ آج کے دور کے اندر جو لوگ بزنس کرتے ہیں کہ ان کا مال کیسا بھی ہو, لیکن جو بزنس ٹائٹل ہونا چاہیے وہ بہت ہی اچھے نام کے ساتھ ہونا چاہیے. اور یہی شیطان کی کوشش رہی ہے. آج کے دور کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں تو محترم سامعین, ایک لڑکا اور لڑکی جو بغیر شادی کی زندگی گزارتے ہیں وہ زنا کر رہے ہیں, لیکن نام کیا دیا جا رہا ہے کہ لیونگ ریلیشن. یعنی کتنا بہترین نام ہے کہ لوگوں کو تصور ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی گناہ
गुनाह है, हालांकि मालूम होना चाहिए ये छोटा मोटा गुनाह नहीं, ये गुनाह है कबीरा, गुनाह है अजीम, यानी बड़ा गुनाह है। जिना करना कोई मामूली बात तो नहीं। और मोहतरम सामीन, अगर आप कुरान और हदीस का मुताला करें तो कुरान मजीद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी किसी गुनाह से इंसानों को रोका है, मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को कत्ल करने से रोका है, तो अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया कि तुम लोग आपस में एक दूसरे का कत्ल करो नाहक तरीके से, वला तक़तुलुन नफ्स लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, कि नाहक तरीके से आपस में एक दूसरे का कत्ल ना करो। सूद खाने से मना किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोका है सूद ना खाओ, कत्ल ना करो। लेकिन जहां जिना की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा कि जिना ना करो, बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना, कि जिना करना तो दूर की बात है, वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम जिना के करीब भी न जाओ। मोहतरम सामीन, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का अंदाज देखिए कि जितने भी गुनाह के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को रोका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बराह रास्त कहा है ये गुनाह ना करो, वो गुनाह ना करो। लेकिन जहां जिना की बारी आई तो ये नहीं कहा कि जिना ना करो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, यानी तुम जिना के करीब भी ना जाओ। हर उस रास्ते पर इस्लाम ने कदगन लगा दी, हर उस रास्ते पर इस्लाम ने हमें रोक दिया, पाबंदी लगा दी कि जो रास्ता तुम्हें जिना तक पहुंचा दे। जिना करना तो दूर की बात है, तुम जिना के करीब भी न जाओ। मोहतरम सामीन, यही वजह है अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया, ला युतअना फी रासी अहदिकुम बिमिखयतिन मिन हदीद, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि एक लड़के और लड़की, औरत और आदमी का आपस में एक दूसरे को छूना, यानी हाथ टच करना, हाथ छूना, हालांकि वो दोनों नामहरम हो, नामहरम का एक दूसरे को हाथ लगाना, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बेहतर है, यानी इंसान के लिए बेहतर है कि वो अपने सर के अंदर लोहे की कील ठोक ले, ये बेहतर है बनिस्बत इसके कि तुम किसी गैर महरम को हाथ लगाओ। मोहतरम सामीन, जिना की बात तो बहुत आगे है, यानी जिना की शुरुआत किससे होती है कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे को हाथ लगाते, छूते हैं, पकड़ते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इनको छूने से बेहतर है कि तुम अपने सरों के अंदर लोहे की कील ठोक लो, यानी तुम्हें इस दुनिया के अंदर से तुम चले जाओ, तुम इस जिंदगी को तुम खत्म कर दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है बनिस्बत इसके कि तुम किसी गैर महरम को टच करो, गैर महरम को हाथ लगाओ। तो मोहतरम सामीन, जिना करने की बात तो बहुत दूर की है, हर वो रास्ता जो इंसान को जिना की तरफ ले जाता है, हर वो रास्ता जो इंसान को बेहयाई की तरफ ले जाता है, बेशर्मी की तरफ ले जाता है, ऐसे तमाम रास्तों पर शरीयत इस्लामिया ने सख्ती के साथ पाबंदी लगा दी है। ये तो बहुत दूर की बात है कि हमें शरीयत इस्लामिया ने जिना से बाद में रोका है, पहले कहा है कि हर उस रास्ते की तरफ तुम ना चलो जो रास्ता तुम्हें जिना की तरफ ले जाता हो, बेहयाई की तरफ ले जाता हो। अच्छा मोहतरम सामीन, इसका हम खात्मा कैसे करें? बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि फला कानून बना दो, ये कानून नाफिज कर दो तो इसका खात्मा हो जाएगा। याद रखिए, अगर किसी को कोई बुराई करनी हो तो दुनियावी कानून से कोई डरता नहीं है। क्या तमाम लोग दुनियावी कानून से डरते हैं? और बहुत सारे मुल्कों के कानून तो ऐसे हैं कि अगर किसी के जेब में पैसा है तो वो कानून को अपने जेब में लेकर के चलता है, फिर चाहे वो किसी के साथ जिना करे, चाहे वो किसी का कत्ल करे, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो मोहतरम सामीन, इस्लाम ने जो जिना के कानून लगाए, जिना पर जो पाबंदियां आयद की, जो जिना के ऊपर जो कानून लगाए, कानून बहुत बाद में लगाए। पहले इस्लाम ने कुछ उसूल और कुछ ज़ाब्ते बताए, अपने मानने वालों को कुछ उसूल और कुछ ज़ाब्ते दिए, कुछ ज़हन साजियां की, उसके बाद शरीयत इस्लामिया ने कुछ कवानीन के कुछ कानून को बनाया। मोहतरम सामीन, सबसे पहले इंसान के अंदर शरीयत इस्लामिया ने कोशिश ये की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा डर उसके सीने में पैदा कर दिया जाए कि वो गुनाह की तरफ बढ़ने से पहले वो 1000 मर्तबा सोचे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। अब बताओ, मालदार हो या गरीब, अमीर हो या फकीर, जवान हो या बूढ़ा, मर्द हो या औरत, अगर अल्लाह का डर उसके सीने में होगा तो बताओ वो जिना जैसा अजीम जुर्म को कभी आसानी से अंजाम दे पाएगा? मोहतरम सामीन, कभी नहीं दे सकता। और मोहतरम सामीन, कुरान मजीद में और अहादीस के अंदर बहुत सारी हमें ऐसी मिसालें मिल जाएंगी। मसलन आप देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ आप देखिए, उनका वाकया पढ़िए कि जब मलिक मिस्र ने जब उन्हें गुनाह की तरफ बुलाया, गुनाह की दावत दी, अल्लाह से क्या दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, और उन्होंने
एहतराम नहीं करोगे तो उठा करके जेल में डाल दूंगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हुए क्या कहते हैं, अल्लाह मुझे जेल में जाना मंजूर है, जेल में जाना मुझे मंजूर है, बनिस्बत इसके जिस काम की तरफ ये औरत मुझे बुला रही है, इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को जेल के हवाले कर दूं। अगर अल्लाह का डर हो तो बंदा ऐसी बातें करता है। कुरान मजीद की आयत करीमा क्या है, वरावदतुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सी व गल्लक़तिल अबवाब व क़ालत हैत लक। जब मलिक मिस्र ने बुराई का इरादा किया, वगल्लक़तिल अबवाब, और उसने घर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या कहा, हैत लक, कि करीब आओ और मेरे साथ ज़िना करो, मेरे साथ गलतकारी करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मआज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। तो मोहतरम सामीन, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हमारे सीनों के अंदर बैठ जाए तो याद रखिए ये दुनियावी कानून से लाख दर्जे बेहतर है। अगर किसी के सीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर बैठ गया तो वो आसानी से वो बेहयाई को अंजाम नहीं दे सकता। हम देखते हैं जो फित्ने इर्तिदाद आज हम देख रहे हैं कि मुसलमान लड़कियां जो गैरों के साथ बहुत आसानी से फरार हो जा रही है, हम देखें तो सबसे बड़ी गलती उनके वालिदैन की है। उनके वालिदैन ने उन्हें वो अखलाक नहीं दिया, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर नहीं बताया जो अखलाक अपनी बच्चियों को देना चाहिए था, जो तक़वा अपनी बच्चियों के अंदर पैदा करना चाहिए था। मेरी माएं बहनें भी सुन रही हैं, मैं एक वाक़या सुनाना चाहूंगा। मोहतरम सामिईन व सामियात, आपने इकरामा बिन अबी जहल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम सुना होगा, जो अबू जहल के बेटे हैं। इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। जब मक्के फतह हो चुका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर दाखिल हो गए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मक्का के अंदर दाखिल हुए, इकरामा इब्न अबी जहल जिन्होंने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया था, वो डर के मारे मक्का छोड़कर यमन के रास्ते की तरफ निकल पड़े। उनकी बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और अपने शौहर के लिए सिफारिश की कि अल्लाह के नबी, अगर इकरामा आए इस्लाम कबूल कर ले, अल्लाह के नबी आप उन्हें माफ कर देना। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, मैं माफ कर दूंगी। वो अपने शौहर के पीछे पीछे चल पड़ी और उनके शौहर उन्हें बीच रास्ते पर अपने शौहर से मुलाकात हो गई। अपने शौहर से कहती है, तुम बिला वजह डर करके भाग गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अमन व अमान देने का वादा किया है। ये कह करके अपने शौहर को लेकर अल्लाह के नबी के पास वो चल पड़ी। बीच रास्ते में मोहतरम सामीन और सामियात, उनका वो शौहर था, इकरामा बिन अबी जहल वो शौहर थे। उन्होंने अपने बीवी से हमबिस्तरी करने की ख्वाहिश जाहिर की। रास्ते में कोई नहीं था, रात हो चुकी थी, उन्होंने अपनी बीवी से हमबिस्तरी करने की ख्वाहिश जाहिर की। देखिए उनकी बीवी कोई बहुत जूने जमाने में उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, अभी उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जैसे ही इकरामा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया अपनी बीवी की तरफ, उनकी बीवी ने फौरन मना कर दिया, फौरन रोक दिया। क्यों? कि मैं इस्लाम ला चुकी हूँ और आपने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है, तो मेरी खैरत गवारा नहीं करती कि कोई गैर मुस्लिम जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है वो मुझे छुए, वो मुझे टच करे। मोहतरम सामीन, कहाँ गई हमारी ये गैरत ईमानी, आज कहाँ चली गई कि आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घरानों के अंदर हमने हमारी आंख खोली है। आज हमारी पैदाइश मुसलमान घरानों में हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी गैरत ईमानी का फुकदान नजर आता है। वो गैरत हमें हमारे अंदर नजर ही नहीं आती कि कोई गैर मुस्लिम आकर के हमें हाथ कैसे लगाए। अरे गैर मुस्लिम छोड़ो, मैं कहता हूँ कोई मुसलमान आकर के हमें हाथ कैसे लगा सकता है। देखिए इकरामा बिन अबी जहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने जिस औरत ने, उनकी बीवी ने कई रात उन्होंने एक साथ में गुजारी है, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया, क्या कहती है कि मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि एक गैर मुस्लिम मर्द मुझे छुए, मुझे टच करे, ये मेरी गैरत ईमानी बर्दाश्त नहीं करती, शरीयत इस्लामिया मुझे इसकी इजाजत नहीं देती। और मोहतरम सामीन, हम सहाबियात के वाक़यात पढ़े, मरने के बाद भी उन्हें फिक्र रहा करती थी कि हमारे जिस्म के उतार चढ़ाव को मरने के बाद भी कोई देख न ले। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये अस्मा बिन्ते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक बार कहती है कि मदीना के अंदर जो औरतों को मरने के बाद लेकर जाया जाता है, मुझे ये सिस्टम समझ में नहीं आता। इससे क्या होता है कि औरतों का पूरा उतार चढ़ाव, उनके जिस्म की मुकम्मल बनावट नजर आती है। मोहतरम सामीन और सामियात, आप अंदाजा लगाइए किस कदर वो गयूर कौम थी कि उन्हें ये गवारा नहीं था, उन्हें जिंदगी में तो
नागवार नहीं था कि मरने के बाद भी उनके जिस्म के उतार चढ़ाव को, उनकी जिस्म की बनावट को कोई शख्स देख ले। तो अस्मा बिन्त अबी बकर क्या कहती है कि मैंने हबशा के अंदर देखा है जब किसी औरत का इंतकाल हो जाता है तो उसके ऊपर खजूर के बहुत सारे पत्ते उसके ऊपर डाले जाते हैं, फिर पत्तों के ऊपर चादर रखी जाती है और उसके बाद उसे कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाया जाता है। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये वसीयत करती है कि जब मेरा इंतकाल हो तो आप इसी तरह मुझे लेकर के जाना जो तरीका आपने बताया है। तो मोहतरम सामियान, ये वाक़यात हमारे लिए इबरत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा डर हमारे सीनों के अंदर पैदा हो कि बेहयाई की तरफ हम आसानी से नहीं जा सके, जिना की तरफ जाने से पहले हम 1000 मर्तबा सोचे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा डर हमारे सीनों के अंदर होना चाहिए। और मोहतरम सामीन, दूसरी एक बहुत बड़ी कमजोरी जो आज हमारी औरतें बेहया नजर आती है, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये भी है क्योंकि हम मर्द, ये हमारी गैरत खत्म हो चुकी है। अब या आप मान लीजिए इस बात को, जिस घर की औरतें बेपर्दा आपको नजर आए, आप उस घर के बारे में समझ लीजिए, तसव्वुर कर लीजिए कि इस घर के मर्द ये दयूस है, इस घर के मर्द ये बेगैरत हो चुके हैं। एक बागैरत मर्द, एक गैरतमंद मर्द कभी भी गवारा नहीं कर सकता उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी माँ या उसकी मातहती में रहने वाली कोई भी लड़की ये बेपर्दा होकर के घूमे, कभी भी मर्द गवारा नहीं कर सकता। और मोहतरम सामीन, अगर हम दयूस हो चुके हैं तो बहुत बड़ी वईद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें मिली है। अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया, सलातुन क़द हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह, कि 3 लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम कर दिया है कि 3 लोग जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते हैं, जन्नत उन पर हराम कर दी गई है। पहला, जो बहुत ज्यादा शराब का आदी हो, बहुत ज्यादा शराब पीने वाला, अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है। वलआक़ु लिवालिदैहि, वालिदैन का नाफरमान भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वद्दयूस अल्लज़ी युक़िरु फी अहलिहिल ख़बर, और दयूस पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत हराम कर दी है। दयूस कौन है कि उसके सामने उसकी मातहती में रहने वाले लोग बेहयाई करें और उस पर वो खामोश रह जाए, उस पर वो सब्र कर ले, उसकी गैरत को वो दबा करके वो सब्र कर ले, यानी वो शख्स दयूस है और दयूस कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। मोहतरम सामीन, एक मर्तबा हज़रत सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने साथियों से कहा कि अगर मैं अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के सामने देख लूं तो मैं गवाह तलाश करने नहीं जाऊंगा, बल्कि तलवार से मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। सहाबा किराम आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हज़रत सअद ऐसी और ऐसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया, अतअजबून मिन गैरति सअद, क्या आपको ताज्जुब नहीं होता सअद की गैरत पर कि सअद कितने ज्यादा गैरतमंद है। वल्लाहि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैं सअद से कई गुना ज्यादा गैरतमंद हूं। वल्लाहि ला अना अग़यरु मिन, अल्लाह की कसम मैं सअद से कई गुना ज्यादा गैरतमंद हूं। वल्लाहु अग़यरु मिन्नी, और अल्लाह मुझसे कई गुना ज्यादा गैरतमंद है। तो मोहतरम सामीन, अपने आप को गयूर बनाओ, अपने आप को ऐसा गैरतमंद बनाओ कि मोहतरम सामीन, हमारी घर की औरतें जुर्रत ना कर सके कि वो हमारे सामने बेहयाई करे। आप देखिए सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम ने एक लंबी चौड़ी हदीस नकल की है, यानी सहाबा किराम के अंदर कितनी गैरत हुआ करती थी, आपको इससे अंदाजा होगा। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक शख्स को, एक ताबी को वाक़या बयान करते हुए कहते हैं, एक घर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मैं आपको इस घर के अंदर रहने वाले एक नौजवान का वाक़या सुनाऊं। वो ताबी कहते हैं कि सुनाइए, क्या वाक़या है। अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि ग़ज़वा खंदक की बात है कि सहाबा किराम खंदक खोदने में मसरूफ़ थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के ज़िम्मे काम लगा दिया था कि फला सहाबी को इतना हिस्सा खोदना है, फला सहाबा किराम की टीम को इतना हिस्सा खोदना है। तो हमारे साथ खुदाई के अंदर एक नौजवान सहाबी भी शरीक थे और जिनकी अभी शादी हुई थी। वो सहाबी रोज आ जाते, खंदक की खुदाई करते और जब आधा दिन गुजर जाता अल्लाह के नबी से इजाजत मांगते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नई शादी हुई है, अपनी बीवी से मुलाकात करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे देते। ये सिलसिला चलता रहा, अल्लाह के नबी इजाजत देते रहे। एक मर्तबा की बात है कि वो सहाबी आए
اور اللہ کے نبی سے اجازت مانگی. اللہ کے نبی نے اجازت دیتے ہوئے کہا خذ علیک سلاحک ورمحک کہ صحابی اپنے ساتھ کوئی ہتھیار وغیرہ لے لینا, مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی دشمن اکیلا دیکھ کر کے آپ کا کام تمام نہ کر دے, تو اپنے ساتھ کوئی ہتھیار وغیرہ رکھ لینا تاکہ دشمن سے اپنے آپ کو تم بچا سکو. وہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کیا اور اپنے ساتھ ایک تیر اور کمان اپنے ساتھ رکھ لیا. جیسے ہی وہ اپنے گھر کے قریب پہنچے, وہ صحابی کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے دروازوں کے دونوں پٹ کھلے ہوئے ہیں. 2 دروازے تھے, دروازوں کے دونوں پٹ کھلے ہوئے ہیں اور ان کی بیوی یہ چہرہ کھول کر کے گھر کے باہر کھڑی ہے. محترم سامعین, ہماری قوم ہماری غیرت گوارا کر سکتی ہے کہ ہماری ماں بہنیں چہرہ کھول کر کسی کے سامنے بھی چلے جائیں, لیکن وہ صحابی تھے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت یافتہ تھے, تربیت پائے ہوئے تھے. جیسے ہی انہوں نے اپنی بیوی کو دروازے کے باہر دیکھا, محترم سامعین, ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. جو تیر اللہ کے نبی کی نصیحت پر انہوں نے رکھا تھا وہ تیر اپنی بیوی پر تان دیا کہ آج اس کا کام تمام کر دیتا ہوں. اس کی جرأت کیسے ہوئی کہ چہرہ کھول کر کے گھر کے باہر کھڑی ہے اور تیر اپنی بیوی پر تان دیا. قریب تھا کہ تیر چھوڑ دیتے, بیوی سمجھ گئی اور بیوی نے کہا اکفف کہ شوہر رک جاؤ, ذرا دیکھو تو میں باہر کیوں آئی ہوں, آنے کی وجہ تو دیکھو. شوہر نے اپنے غصے پر قابو کیا اور جب اندر جا کر کے دیکھا تو ایک چھوٹا سا روم تھا اور ان کے اس بستر پر ایک بہت بڑا اژدہا فن پھیلائے ہوئے لپٹا ہوا تھا. تو محترم سامعین, بیچاری بیوی کیا کرتی, اس اژدہے سے بچنے کے چکر میں بیچاری وہ باہر آ گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کتنے غیرت مند ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اپنی بیوی کو جان سے قتل کر دو, نہیں. محترم سامعین, کم از کم اپنا اتنا روک تو رکھو کہ بیوی یا آپ کی بہن یا ماں کبھی بھی بے حیائی کرنے سے پہلے وہ یہ سوچے کہ ہمارے شوہر کو پتا چلا تو ہماری ایسی اور ایسی حالت ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم غیرت مند بنے. آج ہماری بے غیرتی کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں محترم سامعین کہ آج ہماری گھر کی عورتیں یہ بے پردہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور تیسری اہم وجہ اگر ہم بے حیائی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو محترم سامعین, اپنے بچوں کی اپنی بچیوں کی شادی میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہ کرے. شادی میں تاخیر کرنا یاد رکھیے بے حیائی کو پروان چڑھانا ہے, بے شرمی کو عروج دینا ہے. تو میں گزارش کروں گا ذمہ داروں سے, اگر آپ کے بچے اس لائق ہو چکے ہیں کہ ان کی شادی وہ شادی کے لائق ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے شادی میں ذرہ برابر تاخیر نہ کریں. اللہ کے نبی نے نوجوان کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوان کی جماعت اگر اللہ رب العالمین نے طاقت و قوت سے نوازا ہے فلیتزوج, تو تمہیں چاہیے تم شادی کر لو, تم نکاح کر لو. اس سے کیا ہوگا, فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, اس سے کیا ہوگا کہ تمہاری نگاہیں جھک جائیں گی اور اس سے تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی. اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ذمہ داروں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس تمہاری بچیوں کے لیے یا تمہاری ماتحتی میں جو لڑکیاں رہتی ہیں ان کے لیے کوئی ایسا رشتہ ہے, ایسے لڑکے کا رشتہ ہے جس کے دین سے, جس کے اخلاق سے تم راضی ہو, تو تم منع نہ کرو بلکہ فوراً اپنی بچیوں کا ان سے نکاح کر دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا, اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا, تکن فتنۃ فی الارض, تو اس سے کیا ہوگا, زمین میں فساد ہوگا, زمین میں اس سے فتنہ برپا ہوگا, وہ فساد عظیم اور بہت بڑا فساد ہوگا. یعنی اگر لڑکا اور لڑکی شادی کی عمر پر پہنچ جائے اس کے باوجود بھی اگر گھر والے شادی نہ کرائیں, اللہ کے نبی کیا ارشاد فرمایا, تکن فتنۃ فی الارض, اس سے کیا ہوگا, زمین میں فتنہ برپا ہوگا اور بہت بڑا فساد ہونے کی امید ہے. تو محترم سامعین, اگر ہم بے حیائی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم جلدی سے اپنے بچوں کی اگر وہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں ذرہ برابر تاخیر نہ کریں اور اپنے بچے اور بچیوں کی ہم جتنی جلدی ہو سکے
होंगे मोहतरम सामीन उनकी हम शादी करा दें, अगर हम बेहयाई से बेशर्मी से अगर हम इस समाज और मुआशरे को बचाना चाहते हैं। और मोहतरम सामीन खास तौर से मैं औरतों से गुजारिश करना चाहूंगा, हम देखते हैं शादी के बाद भी खासकर मर्दों के किसी और जगह हम देखते अफेयर हमें नजर आते हैं, तो इसमें मैं खासकर औरतों से गुजारिश करूंगा, आज हम देखते हैं हमारे समाज और मुआशरे में अगर शादी को 10-15 साल का अरसा अगर हो जाता है तो औरत अपने आप को अपने शौहर से अलग थलग कर लेती है। वो ये समझती है अब 4-5 बच्चे हो गए, अब हमारा शौहर कहीं जाने वाला नहीं है और शौहर की जिस्मानी जरूरत का जर्रा बराबर ख्याल नहीं करती है। हम देखते समाज और मुआशरे में मोहतरम सामीन हम उलमाए किराम हैं और उलमाए किराम के पास ऐसे वाक़यात आते रहते हैं, औरतें शिकायत करती हैं कि शादी को 20 साल हो गए, हमारे शौहर ने फला जगह चक्कर चला लिया है। तो गलती आपकी है बहन, क्योंकि आपने अपने शौहर की जिस्मानी जरूरत का ख्याल ही नहीं रखा। शादी के 15 साल गुजरे, 4-5 बच्चे हो गए, अब औरत बेफिक्री हो गई। अब कभी शौहर बेचारा गलती से करीब आ जाता है तो बीवी करीब नहीं आने देती, अब वो अपनी जिस्मानी जरूरत कहां से पूरी करेगा? जाहिर सी बात है यहाँ वो मुंह मारेगा। तो औरतों से गुजारिश है कि वो शौहर को एक ही बंधन में बांध सकती है कि वो शौहर की जिस्मानी जरूरियात का वो मुकम्मल तौर से ख्याल रखे। अगर वो ख्याल नहीं रखती है, याद रखिए अल्लाह की निगाह में वो मुजरिम है। अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया कि शौहर अगर अपनी बीवी को हम बिस्तरे के लिए बुलाए और बीवी मना कर दे, पूरी रात फरिश्ते उस बीवी पर लानत करते हैं। और शौहर अगर किसी और जगह चले जाए, वो गलतकारी करे, शौहर तो गुनहगार होगा ही, साथ ही साथ वो बीवी भी बराबर की गुनहगार होगी, क्योंकि उसने अपने शौहर की जिस्मानी जरूरत का ख्याल नहीं रखा। मोहतरम सामीन, एक आखिरी वजह, बहुत सारे माँ बाप जो अपनी बच्चे और बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता व बेरास्ता कर देते हैं, उन्हें अल्लाह का डर भी बता देते हैं। आप अपनी बच्चियों की तो हिफाजत कर लोगे, मोहतरम सामीन जब आपकी बच्चियां बाहर निकलेगी, जब कॉलेज में, जब स्कूल वगैरह में जब वो जाएगी, तो बाहर जो दरिंदे बैठे हैं उन्हें आप अपनी बच्चियों से कैसे बचाओगे? मेरा इशारा इस तरफ है कि हमारी पूरी समाज की जिम्मेदारी है, पूरी हमारी कौम की जिम्मेदारी है कि औरतों के खासकर बनात के हमें स्कूल, हमें बड़े-बड़े कॉलेजेस, हमें बनात के लिए हमें एक आलीशान मदरसा कायम करना चाहिए। क्या हम हमारी लड़कियों के लिए इतना नहीं कर सकते? आज बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि जिम्मेदारी किसकी है? बड़े-बड़े सेठों की जिम्मेदारी है, या मस्जिद के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है, या जो स्कूल चला रहे उनकी जिम्मेदारी है। याद रखिए, हम में से हर शख्स की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने जितना नवाजा है, पैसों के जरिए आप ताउन करें, बातों के जरिए आप ताउन करें, अगर आप कोई काम कर सकते हैं आप ताउन करें। मोहतरम सामीन, याद रखिए, मरकज पर एक इदारा चल रहा है, मदरसा अस्माउल बना, तकरीबन उसमें 100 के करीब बच्चियां हैं। मोहतरम सामीन, वो बच्चियां अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह उस इदारे को 2 साल हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें उन बच्चियों ने सीख ली है। शुरू में जो मुअल्लिमात उन्हें पढ़ाती है, उनके साथ जब हमारी मीटिंग हुई तो मुअल्लिमात ने बताया कि वो इल्म 2 तरह के होते हैं। एक वो इल्म तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, एक वो इल्म बुनियादी इल्म जो हर मुसलमान पर फर्ज है, और एक वो इल्म जो बहुत बारीक, जो उलमाए किराम हासिल करते हैं, दीन के बहुत अंदरूनी वाले मसाइल, वो हर किसी पर फर्ज नहीं, लेकिन दीन का जो मोटा इल्म है वो हर मुसलमान पर फर्ज है। खासकर औरतों के जो हैज़ व निफास के मसाइल है, ये औरतों पर फर्ज है, उन्हें आना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमारे समाज और मुआशरे में जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें वो इल्म भी नहीं आता, वो इल्म भी उनके पास नहीं जो इल्म शरीयत इस्लामिया ने उन पर फर्ज किया है। मोहतरम सामीन, बताओ इसके जिम्मेदार कौन है? हम मर्द हजरात हैं। हमने हमारे इर्द गिर्द ऐसा कोई सिस्टम बनाया ही नहीं जिसमें औरतें आकर के, हमारी बेटियां आकर के, हमारी औरतें, हमारी बहनें आकर के पर्दे के साथ तालीम, इल्मी पर्दे के साथ वो दीनी तालीम हासिल कर सके। हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया। अगर हमारी बेटी को हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, क्या हमारे पास कोई इंतजाम है कि हमारी बेटी एक पर्दे के अंदर रह करके एक बात सलाहियत डॉक्टर बन सके? अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम ये काम नहीं कर सकते। अगर किसी को बंगला बनाना हो तो मोहतरम सामीन को अपना आलीशान बंगला बना सकता है। क्या अहमदाबाद की पूरी जमात मिलकर ये काम नहीं कर सकती कि वो अच्छा अपनी बच्चों के लिए कॉलेज बनाए, बड़ी स्कूलें कायम करे, एक आलीशान मदरसा कायम करे? मोहतरम सामीन, अगर आप कोशिश करें, हर शख्स अपने तय कोशिश करे, तो याद रखिए अपनी कोशिश में वो 100% कामयाब हो सकता है। हम देखें यूपी वगैरह के अंदर बहुत गरीब इलाके हैं, लेकिन लड़कियों
बड़े बड़े मदरसे वो चला रहे हैं, हमसे कई गुना ज्यादा वो गरीब है। हमारे अंदर कोई ऐसी तो गुर्बत है नहीं। आज हम देख अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छी जगह हम रह रहे हैं, लेकिन जहां ये तालीम की बात आती है कि बच्चों की तालीम के लिए हमें कुछ करना है, मोहतरम सामीन तमाम के कदम पीछे हट जाते हैं। याद रखिए, अल्लाह की निगाह में हम मुजरिम बनेंगे कि हमने एक बार भी कोशिश नहीं की कि हमारी बच्चियों के लिए कुछ होना चाहिए। हमारी बच्ची अगर कुछ बनना चाह रही है तो बापर्दा हो करके वो बन सके, हमें ऐसा कोई इंतजाम करना चाहिए। ऐसा इंतजाम नहीं कर सकते। याद रखिए, तमाम लोग अल्लाह की निगाह में मुजरिम है। अगर कोई गरीब है तो मोहतरम सामीन किसी और राही से वो मदद कर सकता है। अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा है, अपने माल के जरिए वो मदद कर सकता है। तो बेहयाई के खात्मे की मैंने कुछ उसूल आप हज़रात के सामने जिक्र किए हैं। आखिर अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आज के इस खुतबे जुमे में जो नसीहतें की गई है, उन नसीहतों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हर किस्म के गुनाह से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, खास करके बेहयाई और बेशर्मी जैसे अजीम गुनाह से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह जो मुसलमान भाई हमारे कर्ज में मुब्तला है, उनकी कर्ज की अदायगी की गैर से शक्ल सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला, शिफाए आजिला, शिफाए दाइमा अता कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बे औलाद है उन्हें औलाद की नेमत से माला माल कर। अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, ईमान पर रख, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। आमीन। व मा अलैना इल्ला